हेलो, तो आज हम सॉल्व करेंगे कंटेनर विद मोस्ट वाटर प्रॉब्लम. सो लेट मी रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट. You are given an integer array height of length n. There are n vertical lines drawn such that the two endpoints of the ith line are I comma 0 and I of height I. So here I is basically the index of the array. So basically if you look at this array, so this is your height 1, this is height 8, this is 6, 2, and like that this is 7. Okay. Now we have to find the two lines that together with x-axis form a container. So like if you take two lines, let's say if you take this line and this line, right? So now if you put, let's say water from the top, right? तो ये तो आपका container है, it will fill like this, right? तो जो आपकी जो छोटी line है, उसके that will be the height of this rectangle and width would be basically, the distance between these two lines. Now we have to find the maximum amount of water in a container can store, right? अब क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारी लाइन्स है, राइट? सो देयर विल बी मेनी डिफरेंट कंटेनर, लाइक अगेन these two lines is like between this and this is one container, then like okay. Now so we have to find, so there will be one container like which will have maximum amount of water. Now there's again notice that you may not slant the container, so we have to keep these lines straight, because let's say if you like tilt, right? So in this example you take this one and this one, and if you like tilt it, right, so maximum water maybe it would be like more than the what is currently we are seeing, right? So that what we don't have to do, so it is like all lines are straight. Okay. तो सबसे सिंपल लेट्स से पहले ब्रूट फोर्स वे में ट्राई करते हैं. तो जैसा कि देख सकते हैं कि लाइक हर इंडेक्स एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो अगर मैं एक छोटा एग्जांपल लूँ, मे बी लेट्स से 1 कॉमा 2 कॉमा लेट्स से 8 कॉमा 6, आई एम गिविंग सम रैंडम वैल्यूज. ओके. तो हम एक तरीका ये कर सकते हैं कि बेसिकली हर लाइन को हर दूसरी लाइन से बेसिकली कंबाइन करके हम रेक्टेंगल फॉर्म करें और उसका एरिया कंप्यूट करें. तो जैसे इन दोनों लाइन के बीच में एक एरिया बनेगा, ठीक है? ऐसे ही इस लाइन का इसके साथ, ठीक है? और इस लाइन का इसके साथ, ठीक है? सेम चीज़ मैं दूसरी लाइन के लिए भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से जो रेक्टेंगल बनेंगे उन सब का एरिया मैं कंप्यूट करूंगा, ठीक है? एंड विल कीप ट्रैक ऑफ द मैक्सिमम वन. अब बेसिकली सो लेट्स से अगर इसका इंडेक्स आई है और एक इंडेक्स जे, ठीक है? देन व्हाट विल बी द एरिया? ओके. सो द एरिया वुड बी बेसिकली विड्थ एंड हाइट. सो विड्थ would be basically j minus I, and height would be as we see, like let's say if you have let's say two lines, right? There can be like lines in the middle also. So the area that you have, like the maximum area, that will be along this smaller line, right? So it would be minimum of, uh, uh, let's say I call it H1 and this is H2, okay? So this would be min of H1 comma H2, okay? So that we have to basically compute this then area for, like all the combinations of I and j. So j will go from 0 to n minus 1. I will also go from 0 to n minus 1. Okay. So that is the brute force solution. Uh, अब जो brute force solution था वो तो हमने आंख बंद करके दो for loop चला ली, and we are computing area in every iteration and keeping track of the maximum. Now there is a optimal solution which हम इसको order of in linear complexity में भी कर सकते हैं. तो उसके लिए let me draw an example. तो जैसे कि basically अगर let me draw two lines, straight नहीं है but I think वो ठीक है. ओके, और ये दूसरा लाइन, ठीक है? अगर वो आप ध्यान से देखें, ठीक है? ये दो लाइन है, ठीक है? इनके बीच में मैक्सिमम, और यहाँ बीच में कुछ और भी लाइंस हो सकते हैं, ठीक है? आई एम नॉट ड्राइंग, दे कैन बी लाइक बिगर देन द करंट और लाइक, ठीक है? अब ये जो एरिया बनेगा इन दोनों के बीच में, अगर आप देखोगे, ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया इस छोटे लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ठीक है? इस छोटी लाइन के लिए सबसे बड़ा एरिया जो बनेगा वो हमेशा बनेगा आपका इस लास्ट लाइन के साथ ही, ठीक है? क्योंकि छोटी लाइन से जो भी आपका एरिया बनेगा उसकी हाइट हमेशा ये छोटा h होने वाला है, ठीक है? h, ठीक है? तो मैक्सिमम एरिया के लिए मुझे चाहिए कि मैक्सिमम विड्थ, और मैक्सिमम विड्थ
इस केस में क्या होगी, j माइनस आई, ठीक है। तो मुझे इस छोटी लाइन के लिए बाकी के जो रेक्टेंगल्स जो मैं पहले कंप्यूट कर रहा था ब्रूट फोर्स वे में, वो मुझे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे इसके साथ, इस लाइन के साथ, इस लाइन के साथ ये सारे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो छोटी लाइन के लिए मुझे पता है कि मैक्सिमम एरिया क्या है, ठीक है। तो वो एक बार कैलकुलेट कर लिया, फिर मैं छोटी लाइन को स्किप कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस एग्जांपल में देखते हैं, तो मेरा जो पहला पॉइंटर है वो है 0th इंडेक्स पे, और जो दूसरा पॉइंटर है वो लास्ट इंडेक्स पे, ठीक है। अब मुझे पता है इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन होगी, तो मुझे पता है छोटा लाइन ये है, और इसके लिए जो मैक्सिमम रेक्टेंगल होगा वो मैंने ये कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब ये करने के बाद मैं बेसिकली छोटी लाइन इस पॉइंटर को मूव करता हूँ टुवर्ड्स दिस, ओके। अब इन दो में छोटा लाइन कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो मुझे पता है इसका रेक्टेंगुलर क्या होने वाला है, तो छोटी लाइन की हाइट इनटू इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो, ठीक है। तो इसको मैं मूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों में छोटा यही है, तो मैं फिर से इसको मूव करता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों लाइन सेम है, अब आप किसी को मूव कर लो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो लेट्स से मैं इसको मूव करता हूँ, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में आप एरिया कैलकुलेट करिए, तो वो ये वाला होगा, ठीक है। और इस वाले को मूव करके यहाँ आ जाता हूँ, ठीक है। और अब इन दो, इसको और इसके बीच में रेक्टेंगल ये बनेगा, ठीक है। इसको मैंने मूव कर दिया, मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये छोटी लाइन रेक्टेंगुलर ये, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रेक्टेंगल ये, ठीक है। और जब ये स्टार्ट और ये दूसरा लास्ट पॉइंट है, जब मीट कर लेते हैं तब हमें रुक जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो टोटल जो स्टेप्स हुए हैं वो आपके n स्टेप्स हुए हैं, और आपने ना हर स्टेप में एक एरिया कंप्यूट किया है एंड यू कीप ट्रैक ऑफ द मैक्सिमम, तो आपको ना मैक्सिमम एरिया मिल जाएगा इस अप्रोच से। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, सो आई एम हैविंग टू पॉइंटर, पहले स्टार्ट को 0 इंडेक्स पे रखा है और दूसरा एंड पॉइंटर लिया जिसको हमने रखा है लास्ट इंडेक्स पे एरे के, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैक्स एरिया जिसको हमने शुरू में 0 से इनिशियलाइज किया है, ठीक है। अब हम एक व्हाइल लूप चलाते हैं until like start is less than n, ठीक है। मैं कैलकुलेट करता हूँ विड्थ, विड्थ वुड बी बेसिकली n माइनस स्टार्ट, और हाइट हमारी होती है बेसिकली जो लाइन छोटी थी, ठीक है। तो मैंने हाइट ऑफ स्टार्ट और हाइट ऑफ एंड का मीन कर लिया, तो वो हमारी हाइट हो गई, ठीक है। वो एरिया मैं कैलकुलेट करता हूँ w इंटू एच, और देन उसको मैं कंपेयर करता हूँ मैक्स एरिया के साथ, और इन दोनों में जो मैक्सिमम होता है उसको मैं मैक्स एरिया में सेव करके रख रहा हूँ, ठीक है। वो कैलकुलेट करने के बाद अब मुझे पॉइंटर मूव करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि कौन सी लाइन छोटी है, ठीक है। तो अगर हाइट ऑफ स्टार्ट इज लेस देन हाइट ऑफ एंड, अगर वो स्टार्ट वाली लाइन छोटी है तो मैं क्या करता हूँ, उस लाइन को मूव करता हूँ, तो स्टार्ट प्लस प्लस करता हूँ। और अगर अपनी लास्ट वाली लाइन छोटी है, ठीक है, तो उस केस में मैं उस पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो एन माइनस माइनस, ठीक है। तो ये while लूप आपकी चलेगी n टाइम्स, ठीक है। और आफ्टर रनिंग n टाइम्स यू विल मीट हिट दिस कंडीशन स्टार्ट लेस देन, एक टाइम आएगा जब आपका स्टार्ट विल बी इक्वल टू n, और वहाँ पे हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, और तब आपके पास मैक्सिमम एरिया होगा जिसको आप रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन से। Yeah, that was the approach we discussed, and this is the solution for this problem. I hope you enjoyed it. Thanks for watching.